हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है। और जहाँ पर हम देख रहे हैं आपके केवीएस एनबीएस की एग्जाम्स की हम तैयारी करा रहे हैं। यहाँ पर डेली प्रिपरेशंस आप कर रहे हैं। पीवाईक्यूज यहाँ पर कराए जा रहे हैं, एमसीक्यूज आप सॉल्व कर रहे हैं डेली अलग अलग टॉपिक्स पे। और हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के टॉपिक को आज हम यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे और पहला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन। Which of the following statement is not correct for C4 plants? देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं। These are less efficient for photosynthesis. These are less efficient for photorespiration. They have cranch anatomy in their leaves. They use PEP as CO2 acceptor. चलिए पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर कीजिएगा। Which of the following statement is not correct for C4 plants? और जहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दीज आर लेस एफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि ये ही स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट मतलब सही नहीं है और हमारा वही पूछा गया क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। During dark reaction for fixation of carbon, the 3 carbon atoms of each molecules of 3-phosphoglyceric acid are derived from. ऑप्शंस है RuBp, CO2, RuBp plus CO2, RuBp plus CO2 plus PEP. RuBp का फुल फॉर्म है रिबिस्को बिसफॉस्फेट एंड PEP का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है फुल फॉर्म? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, और यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का रुबिस्को बिसफॉस्फेट प्लस CO2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। Photosynthesis in C4 plants is relatively less limited by atmospheric CO2 levels because. Options है 4 carbon acids are the primary initial CO2 fixation products. The primary fixation of CO2 is mediated via PEP carboxylase. Effective pumping of CO2 into bundle sheath cells. Rubisco bis CO in C4 plants has higher affinity for CO2. क्वेश्चन नंबर 65 टॉपिक चल रहा है हमारा फोटोसिंथेसिस। आंसर कीजिएगा, कमेंट सेशन में आंसर कर सकते हैं। And the right answer is the primary fixation of CO2 is mediated via PEP carboxylase. Option B is correct. Next question number 66. C4 plants are more efficient in photosynthesis than C3 plants due to the higher leaf area, the presence of large number of chloroplasts in the leaf cells, the presence of thin cuticle, the lower rate of phosphorespiration. सेशन हमारा बायोलॉजी का है। बायोलॉजी टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे यहाँ पर। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 66। The lower rate of photorespiration, option D is correct. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 67। The C4 plants differ from C3 plants in. Options है type of pigments involved in photosynthesis, number of ATPs involved in formation of sugar, the substances that accepts CO2 during assimilation,
Type of end products of photosynthesis. The C4 plants differ from C3 plants in. The substance that accepts CO2 during assimilation. ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिल्कुल ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। फॉर each molecule of glucose formed in plants, the number of molecules of ATP and NADPH2 required are respectively. देखिए यहाँ पर ऑप्शंस है 18 and 12, 12 and 18, 15 and 10, 12 and 20. $68 number question. For each molecule of glucose formed in plants, the number of molecules of ATP and NADPH2 required are respectively. फर्स्ट नंबर होगा ATP का, सेकंड होगा NADPH2 का. And right answer is 18 molecule of ATP and 12 molecule of NADPH2. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. चाहे तो क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, कभी भी आप यहाँ पर आकर के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं. 69 नंबर क्वेश्चन. एज कंपेयर टू अ C3 प्लांट, how many additional molecules of ATP are needed for the net production of 1 molecule of hexose sugar by C4 plants? Okay. Options are 2, 6, 0, and 12. $69 नंबर क्वेश्चन. पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए. सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12 मॉलिक्यूल्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट, 12 मॉलिक्यूल्स. चलिए आगे बढ़ेंगे. आई होप आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन समझना बेहद जरूरी है. और अगर आपको प्रैक्टिस करना है, घर पर पढ़ना है, तो आप एनसीईआरटी की बुक लेकर पढ़ सकते हैं. टॉपिक यहाँ से आपको बता दिया जाएगा. जैसे कि आज हम सॉल्व कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चंस. इसके बाद आपको मिलने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के टॉपिक पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो उस पर आप पहले से पढ़कर आ सकते हैं. ठीक है. देखिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन. हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 molecules are used for the fixing of 1 molecule of CO2? ऑप्शन है 3 and 2 respectively, 3 each, 2 each, 2 and 3 respectively. चलिए क्वेश्चन नंबर 70. The right answer is 3 and 2 respectively. Option first is correct, 3 and 2 respectively. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 71. CAM helps the plants in. ऑप्शंस है सेकेंडरी ग्रोथ, डिजीज रेजिस्टेंस, reproduction, conserving water. CAM helps the plants in. CAM helps the plant in conserving water. Conserving water, option D is correct. चलिए आगे बढ़ेंगे. हमारा अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने. In the C4 plants, C4 cycle occurs in the mesophyll cells
and C3 occurs in bundle sheath cells, whereas in CAM plants, चलिए options है C4 and C3 cycle occurs in the mesophyll cells only. C4 cycle occur in bundle sheath cells and C3 cycle in mesophyll cells. C4 cycle very rarely. C4 and C3 cycle occurs in bundle sheath cells. आंसर कीजिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। 72 नंबर क्वेश्चन है। So the right answer is C4 and C3 cycle occurs in the mesophyll cells only. ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73। हाई CO2 compensation point is found in C3 plants, C4 plants, CAM plants, alga। चलिए, high CO2 compensation point is found in C3 plants. Again, option first is correct. कंटिन्यू यहाँ पर आपको टीजीटी पीजीटी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस के टॉपिक पर, सो आप कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। कंपनसेशन पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर वेयर देयर इज। ऑप्शंस है बिगिनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, लिटिल फोटोसिंथेसिस, photosynthesis equal to rate of respiration, none of the above। यहाँ पर आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, और दोनों ही आपको एक ही प्लेलिस्ट पर मिलेंगे। बायोलॉजी के प्लेलिस्ट पर ही आपको इंग्लिश में दोनों के टॉपिक मिल जाए, दोनों के आपको लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे, सो कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, दोनों में आपको अलग अलग टॉपिक्स पर कराए जा रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सब कुछ आपको कराया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर प्रैक्टिस कीजिए जिस भी लैंग्वेज में करना चाहे। Okay, the question is compensation point is the value of a factor where there is photosynthesis equal to rate of respiration. Option C is correct. So next question number 75. With the increase in light intensity, the translocation rate. Options are decreases in roots and shoot both, increases equally in roots and shoot both, increases more in root than shoot, increases more in the shoot than root. Question number 75. With increase in light intensity, the translocation rate is increases more in the shoot than roots. Option D is correct. चलिए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन। Plants adapted to low light intensity have. Options are larger photosynthetic unit size than the sun plants, higher rate of CO2 fixation than the sun plants, more extended root system, leaves modified to spines. Question number 76. Plants adapted to low light intensity have larger photosynthetic unit size than the sun plants. Option first is correct. Option first. आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 77. Solarization is a process in which
ऑप्शन है क्लोरोफिल इज फाउंड, sugar is formed with the help of solar energy, destruction of chlorophyll and ultimate death of living organism, none of the above. चलिए, solarization is a process in which destruction of chlorophyll and ultimate death of living organism. Option C is correct. ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 78, कार्बन डाइऑक्साइड joins the root of photosynthesis during photosystem first, photosystem second, dark reaction, light reaction. आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 78. Carbon dioxide joins the root of photosynthesis during dark reaction. Option C is correct. चलिए, फोटोसिंथेसिस का टॉपिक आज हम फिनिश करने वाले हैं. ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन, वारबर्ग इफेक्ट इज डिक्रीज्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट. ऑप्शन है लो कंसेंट्रेशन ऑफ CO2, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO2, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ O2, none of the above. Warburg effect is decreased rate of photosynthesis at. आप सभी घर पर बिल्कुल सेल्फ स्टडी कीजिए और जो टॉपिक्स यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, उसी टॉपिक पर आप पढ़कर आइए. देन आपके क्वेश्चंस आप ज्यादा सॉल्व कर पाएंगे. डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल यहाँ पर मिलेगी आपको, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लेवल पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो डिफिकल्टी लेवल तो होगी ही होगी एग्जाम में. उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं. सो देखिए इसका आंसर, वारबर्ग इफेक्ट इज डिक्रीज्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ O2. ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 आप सभी के सामने. ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज 10 to 15 degree Celsius, 20 to 35 degree Celsius, 25 to 35 degree Celsius, 35 to 40 degree Celsius. क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर? क्या होना चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस? is 20 to 35 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा. देखिए, मैच दी कॉलम यहाँ पर आ चुका है. मैच करना है आपको. कॉलम्स पढ़ते हैं क्या है फर्स्ट एंड सेकंड में. साइटोक्रोम्स, FF ब्लैकमैन, डार्क रिएक्शन, फिक्सेशन ऑफ O2, रिबुस्को बिसफॉस्फेट, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, कार्बोक्सिलेशन, कोफैक्टर हिम, CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल. चलिए इसको मैच करने की कोशिश कीजिएगा, देन आपको कोड दिखाएंगे. कोशिश कीजिए मैच करने की. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. साइटोक्रोम्स यहां पर आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ हीम 4. डार्क रिएक्शन का हो जाएगा FF ब्लैकमैन. रुबिस्को बिसफॉस्फेट हो जाएगा CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल. एंड कार्बोक्सिलेशन, फिक्सेशन ऑफ CO2. हो गया आपका मैच द कॉलम. इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और हमारा कोड बनने वाला है 4152. चलिए देखते हैं कोड यहाँ पर 4152 कहां पर दिख रहा है. बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट.
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। देखिए यहाँ पर पीवाईक्यू है, एआईपीएमटी के कंटिन्यू आपको पीवाईक्यूज आपको मिलने वाले हैं। 87 number question. In photosynthesis, the light dependent reactions take place at thylakoid lumen, photosystem first, photosystem second, stromal matrix। और ये पूछा गया आपका एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन है, बिल्कुल नोट डाउन कीजिएगा। In photosynthesis, the light dependent reactions take place at stromal matrix. Option D is correct, stromal matrix। Next question number 88। An oxygenic photosynthesis is characteristic of। Options है rhodospirillum, Spirogyra, Chlamydomonas, alba। एंड ये पूछा गया है एआईपीएमटी 2014 PYQ। An oxygenic photosynthesis is characteristic of। rhodospirillum। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। 89 नंबर क्वेश्चन। अ प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 and C4 plants is। ऑप्शंस है ट्रांसपिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोरेस्पिरेशन। एआईपीएमटी 2012 कंटिन्यू 2011, 12, 13, 14, 15 में हमें कंटिन्यू पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस फोटोसिंथेसिस से। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोटोरेस्पिरेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर क्वेश्चन। ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन द proportion of PAR is about 60%, less than 50%, more than 80%, about 70%। सो यहाँ पर हमने टोटल 90 क्वेश्चन सॉल्व किए, 80 प्लस हमने क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रेंड्स। एक टॉपिक में अगर आप 80 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कम नहीं है। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट टॉपिक बता दिया जा रहा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के टॉपिक पर भी आपको इतने ही सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। सो बिल्कुल आप लोग पढ़ के आइएगा। देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा लेस देन 50%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। आप लोग बिल्कुल क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।